یہ ایسی حدیث جو ہوتی ہے نا وہ ہمیں بہت موٹیویٹ کرتی ہے کہ مسلم کی حدیث ہے 1017، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کوئی اچھا طریقہ رائج کیا، کوئی اچھا کام کیا، وہ کرنے کے بعد تو ایک ہی بندہ تھا نا، بھول گیا اس کے بعد، لیکن جتنے لوگ اس کے اوپر عمل کریں گے، جتنے لوگ وہ کام کریں گے، اس کا ثواب اس پہلے بندے کو بھی جاتا رہے گا، اور دوسرے لوگ جو کر رہے ہوں گے ان کے عمل میں کوئی، ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے آپ لوگوں کو کرنا کیا ہوگا، آپ کوشش جاری رکھیں، موٹیویٹ کرتے رہے لوگوں کو۔ میں اکثر آپ کو کہتی ہوں نا کہ جب آپ لوگ کلاس لیتے ہو، لائیو کلاس جب آپ لوگ کر رہے ہوتے ہو، اس کو شیئر کر دیا کرو، جس کو کم از کم آپ 2-3 لوگوں کو شیئر کر دو۔ یو نیور نو کہ کس کو ایک دم سے کوئی چیز کلک کر جائے اور اس کی زندگی پہ قرآن کھل جائے۔ آپ نے تو بس ایک کلک ہی کیا تھا، اس کے بعد اس کو اچھا لگا تو اس نے جو عمل کیے اور اس کی وجہ سے اس کے خاندان میں جو اس نے عمل کیے تھے اور اس کی وجہ سے انہوں نے وہ سیکھا یا ان کی زندگی میں جو بدلاؤ آیا، تو آپ کا تو سفر جاری ہو گیا، آپ کو تو عمل جو آپ نے کیا تھا اس کا اجر آپ کو ملنا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد وہ جو کام کرے گی اس کو آپ کا اجر ملتا رہے گا۔ اور اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا، اور جس شخص نے کوئی برا طریقہ رائج کیا، فار ایگزامپل کوئی ایسا فیشن تھا، ہم نے سوچا کہ ہوتا ہے نا کہ دل میں آتا ہے کہ کوئی ڈفرینٹ لگوں، دوسروں سے کوئی ڈفرینٹ چیز ایسی کروں، لیکن اگر وہ فیشن اللہ کے احکامات کے اندر ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ضرور کرو۔ لیکن اگر آپ ایسا کوئی فیشن ایجاد کرتے ہو جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اندر نہیں آتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بے حیائی کے زمرے میں رکھا ہے، تو کوئی بھی ایسا فیشن کرتے ہو، کوئی رسم و رواج، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ تو ہمارے گھروں میں ہمارے امی ابو کے زمانے سے تھی، ہماری تو دادی بھی ایسے کرتی تھی، نانی بھی ایسے کرتی تھی، تو آپ سوچیں کہ کہاں سے وہ چلا ہوتا ہے یہ سفر جو ہے، اور پھر ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے بعد جتنے لوگ کریں گے۔ پھر شادی بیاہ کی رسومات، جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں، آپ ایک ایک رسم پہ، اب آج کی کلاس کے بعد ذرا سوچئے گا کہ ہم کیا کیا چیزیں کرتے ہیں، ہمارے عمل کیسے ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے کوئی برا عمل طریقہ رائج کیا تو اس کو اس طریقے کے رائج کرنے پر جو بھی اس پہ عمل کرے گا، ان سب کے برابر، ان سب کا گناہ اس پہلے بندے کو ہوگا، اور جو کر رہے ہوں گے نا ان کے گناہ میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اب دیکھیے کہ وہ جو حابیل قابیل کا قتل ہم نے پڑھا تھا، سب سے پہلے تو وہی ہوا تھا دنیا میں، اس کے بعد جتنے قتل ہوں گے اس کا جو کہتے ہیں نا کہ اس کی برائی جو ہے، اس کا وہ اجر تو برا بھی ہے اور اچھا بھی ملتا ہے نا، تو جو برائی میں ان کو ملے گا نا وہ ان کو بھی ملے گا، ہر ایک کا حصے میں سے ان کا بھی حصہ ہوگا۔ اس لیے ہمیں بہت سوچ کے کام کرنا چاہیے، ایک کوئی چیز ایسی کرے کہ ہمیں یہ ہو کہ ہمارے بعد ہمارے بچے کریں گے، ہمارے پوتے پوتیاں کریں گے، ان کو دیکھ کے کوئی اور لوگ کریں گے، تو اس کا گناہ جو ہے اس کا چلتا رہے گا اور اس کا گناہ ہمیں بھی ملتا رہے گا، اللہ نہ کرے۔ اچھا، ایک اور حدیث تھی کہ ابن ماجہ میں کتاب الفتن میں تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف توجہ کی اور ارشاد کیا کہ اے گروہ مہاجرین، تب ان کو باقاعدہ بلا کے کہا کہ ڈرو اس وقت سے جب تم ان باتوں میں مبتلا ہو جاؤ، اور میں بھی پناہ مانگتا ہوں اللہ سے اس بات پر کہ تم لوگ اس میں مبتلا ہو جاؤ کہ جب کسی قوم میں بے حیائی پھیلتی ہے، حتیٰ کہ لوگ اعلانیہ بے حیائی پر اتر آئے، تو ان لوگوں میں ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو اس سے پہلے ان لوگوں میں نہیں تھی۔ تو آپ دیکھیے کہ آج کل ہم سنتے ہیں نا کہ فلاں کو وہ بیماری ہو گئی، جو کہتے ہیں کہ 1% میں بھی نہیں ہے، اور وہ اس کا علاج کر رہے ہیں، بس اللہ سے دعا کرو۔ یا کبھی ابھی کرونا گزرا ہے، آج سے پہلے تو ہم لوگوں نے کبھی امیجن بھی نہیں کیا تھا نا، اللہ اکبر۔ اور پھر رسول اللہ نے فرمایا، اور جب وہ اللہ اور اس کے رسول کا عہد توڑتے ہیں تو اللہ ان پر باہر سے دشمن مسلط کر دیتا ہے جو ان سے سب کچھ چھین لیتے ہیں جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے۔ اب یہ قوموں کی بات نہ آپ سوچیں، آپ اپنے گھر کی بات سوچیں، ہماری تو دنیا ہمارا گھر ہے نا۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے عہد توڑتے ہیں، اور آپ یاد کریں ہم نے عہد کیا کیا تھا، وعدہ الست کیا تھا نا، چلے ہم سوچیں کہ وہ تو ہمیں یاد نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو بتا دیا تھا نا کہ یاد بھی کرایا کہ کیسے کیسے، کیونکہ یاد کرانے والے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہیں، تو پھر تو پکا عہد کیا تھا۔ اور عہد جب کیا تھا تو کیا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور معبود جو ہے، ہم کون ہیں؟ ہم اس کے غلام ہیں۔
हमारी जिंदगी का हर लम्हा अल्लाह सुब्हानहू तआला की अताअत में है, राइट। और फिर हमने ये भी अहद किया था कि इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो आप सोचिए ज़रा कि हम क्या कर रहे हैं। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारक हो उन लोगों को जो कोशिश कर रहे हैं, पूरे ना भी उतरे कोई बात नहीं, एटलीस्ट कोशिश कर रहे हैं ना। अल्लाह ने कोशिशें ही देखनी है, लेकिन जिनको एहसास ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। अब फिर रसूल अल्लाह ने फरमाया, तो और जब उनके हुक्मरान, मतलब उस मुल्क के हुक्मरान किताब अल्लाह को छोड़कर फैसले करते हैं तो अल्लाह उन्हें आपस में लड़ा देते हैं। और हम आजकल देखते हैं ये। अब देखिए कि रसूल अल्लाह ने फरमाया ना कि जब किसी कौम में बेहयाई फैलती है और वो उनमें नॉर्म हो जाती है। अब देखिए, बुराई जो है ना, उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो इतना फैल जाए। तो हमें क्यों लगता है कि हर तरफ बुराई है? एक तरफ तो देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला का नूर है और दूसरी तरफ शैतान है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने शैतान को क्या कहा था? जा तू मरदूद है, तूने जो करना है कर, लेकिन मेरे मोमिन बंदों का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। तो आज जब हम ये कहते हैं कि हर तरफ बुराई फैल गई, तो फिर क्या रीजन है? उसकी रीजन पता है क्या है? उसकी रीजन मैं और आप हैं, क्योंकि हम चुप हैं। हमें ये होता है कि हमें क्या, हम क्यों आप बीच में दखल दें। अब सोचिए कि आजकल किसी ने मुझे एक वीडियो छोटा सा भेजा था, एक स्कॉलर है, उनका वीडियो था जो उन्होंने, एक कोई ड्रामा है बरज़ख, उसके बारे में वो बोल रहे थे, अस्तगफिरुल्लाह। और उन्होंने जो वो बता रहे थे कि उस ड्रामे में जो हराम, मतलब जो गुनाह तो आप साइड पे कर देना कि कुरान में जितने गुनाह हैं, अब कुरान में जितने हराम लफ्ज़ के हैं ना कि ये ना करो, वो सारे इतने खूबसूरत करके दिखाए जा रहे हैं। तो हम बस चुप करके बैठे हुए हैं। अगर हम ये भी कह देंगे ना कि हाँ बस ठीक है, दफा करो, ये तो ड्रामा ऐसा है, हमारी छूट नहीं होगी। अब देखिए हमारी नस्लों को किस तरह से तबाह किया जा रहा है। पहले ड्रामों में आप देखें, पहले क्या होता है, हम लोगों के घरों में ड्रामे होते हैं ना, हम सारा वक्त तो यही होता है कि आप किसी को भी, आप अपने आप को क्वेश्चन करके देख लें कि हर दर्स के बाद लोगों का क्वेश्चन होता है क्या मतलब फिर अब ड्रामा भी ना देखें। अब किसी पार्टी में आप देखें, जब हम सारे बैठे होते हैं तो डिस्कशन क्या होता है, आखिर में जाके यही बात होगी कि तुमने वो ड्रामा देखा है, फलां ड्रामा तुमने देखा है, उसकी फलां किस्त देखी है, उसमें जो काम कर रही थी वो हीरोइन देखी है तुमने, कितनी प्यारी है, वो हीरो देखा है तुमने उसका। ये पहले वो हीरो हीरोइन को आइडियल बना के पेश करते हैं। और कसूर किसका है मुझे ये बताएं? कसूर हमारा है, हम किसी पे क्या ब्लेम करेंगे। अब देखिए मार्केट में क्या चीज बिकेगी, आप एक दुकान खोल के बैठे हुए हैं, आप दुकान में कौन सी चीज रखना पसंद करते हैं जो अब बिकती है मार्केट में? ऐसी चीज नहीं रखेंगे जो बिकती नहीं है। ड्रामे भी वही दिखाए जाते हैं जो बिकते हैं, जो आप देखना चाहते हैं। और उसके बाद आप देखें इस हद तक हम गिर जाते हैं कि इस तरह की चीजें आराम से अब दिखा, पहले वो एक आइडियल बनाते हैं, पहले हम देखते हैं कि ओ माय गॉड इसकी एक्टिंग इतनी अच्छी थी, ये तो हीरो, ओ भाई यू नो एवरीबॉडी वाज टॉकिंग। इवन बड़ी उम्र की औरतें, वो छोटे छोटे जो लड़के होते हैं उनके बाद वाओ क्या वो था और क्या उसने काम किया उसके अंदर। पहले वो इस तरह के कैरेक्टर में दिखाते हैं, वो आपके दिलों के अंदर बसना शुरू होते हैं। उसके बाद फिर वो ऐसा कैरेक्टर में उसको लेके आते हैं कि आप एक्सेप्ट कर लेते हैं फिर कि हाँ ठीक है वो तो मेरा फेवरेट हीरो, वो इस तरह से दिखाया जा रहा है। वो अल्लाह की हराम करदा चीजों को कितने, देखिए शैतान क्या करता है, आज की क्लास में भी हम पढ़ेंगे कि गुनाह को खूबसूरत करके दिखाता है। अगर वल्लाही मुझे ये लगता है कि कोई मुसलमान अगर है ना, कितना भी बुरा है, अगर उसको ये पता हो कि ये गुनाह है ना, वो नहीं करेगा, लेकिन शैतान उसको इतनी खूबसूरत करके दिखाता है, 100 बहाने ये करने का। ये वजह है, अगर तुम चोरी कर रहे हो तो देखो तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे घर के खर्चे नहीं पूरे हो रहे, देखो तुमने ये काम करने हैं, कोई बात नहीं, ये तो इनके पास तो इतने पड़े हुए, अगर हम कर भी लेंगे तो क्या है। कभी हर गुनाह के पीछे इतने खूबसूरत बहाने, इतनी खूबसूरत चीजें वो आपको दिखाएगा कि आप गुनाह करने में मुलव्वस हो जाएंगे। अब देखिए शैतान वहीं हमला करता है जहां पे आपकी वीकनेस होती है। किसी की वीकनेस पैसा है तो वो उधर जाके उसको कहेगा कि लो, अगर तुमने रिश्वत नहीं ली कोई बात नहीं, इतनी सी तो बात है, लेकिन फिर अगर नहीं लोगे तो तुम्हारे खर्चे कैसे पूरे होंगे। कभी किसी की वीकनेस उसकी मोहब्बतें होती हैं, वो मोहब्बतों पे हमला करता है। तो आप देखिए कि आजकल हमने मीडिया पे हमने देखा था, रिसेंटली देखा था कि 2 भाई हैं, दोनों ही भाई इतने अच्छे काम कर रहे हैं लोगों के लिए, एक बहुत बड़ा उनका नाम दोनों भाइयों का, लेकिन दोनों आपस में जब लड़ रहे हैं तो इतनी बुरी तरह से कि एक दूसरे को जलील करने पे तुल जाते हैं।
ये किसके काम है, हमें समझ ही नहीं आती। आज हम इंशाल्लाह सूरह यूसुफ में हम देखेंगे वो एक कैरेक्टर हमें नजर आएंगे कि दुश्मनी के बावजूद भी हम किस तरह से अमल कर सकते हैं, हम किस तरह से अपने दुश्मन को अपना दोस्त बना सकते हैं। देखिए दुनिया में आए हैं ना तो ये सारी चीजें हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पता था कि शैतान हमें कैसे कैसे बहका सकता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में बैना बयान कर दिया कि देखो इन रास्तों पे ना जाना, देखो इन रास्तों पे ना जाना, ये तुम्हारी कमजोरियां हैं। अल्लाह ने कमजोरियां भी बता दी कि देखो तुम्हारी कमजोरी तुम्हारी औलाद है, तुम्हारी कमजोरी तुम्हारा पैसा है। घोड़ों का जिक्र है ना, जैसे आजकल फॉर एग्जांपल बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ा बड़ा घर, ये सारी चीजें, ये सारी हलाल मोहब्बतें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे दिल में डाली हैं। लेकिन जब हम उन मोहब्बतों को उनकी सतह से ऊपर ले जाते हैं ना, शैतान हमला कर देते हैं। वो आपकी कमजोरी को पकड़ लेता है, उसको पता है कि ये बिक जाएगा बंदा। तो हमें कुरान क्या सिखाता है कि हमने अपनी जिंदगी को बैलेंस कैसे करना है, हम कैसे अपनी जिंदगी को लेके चलेंगे। क्योंकि खुद कसम फिर वही बात है कि नहीं खानी चाहिए ज्यादा, लेकिन वल्लाही जिंदगी में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, बड़ी बड़ी चीजें आती हैं हर इंसान की जिंदगी में, लेकिन डील करने का तरीका हमें कुरान सिखाएगा। जब हम कुरान को छोड़ के खुद से डील करने की कोशिश करते हैं ना, तो तभी एंग्जाइटी आती है, तभी डिप्रेशन भी आ जाता है, क्योंकि हमें तवक्कल करने वाले की जात पे तवक्कल नहीं रहता। तो अल्लाह करे कि हमें इस बात की समझ आए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी अगर कम से कम आप लिख के, जिसमें जो हैसियत है, जो बोल के कह सकता है बोल के बताएं कि ये ड्रामा बुरा है और इसको बंद करें ताकि हमारी नस्लें खराब ना हो। जो लिख के कर सकता है वो लिख के करे, जो कमेंट्स में लिख सकता है वो उस तरह से लिखे ताकि लोगों को ये पता हो कि ये एक्सेप्टेंस नहीं है। हम चुप हो जाएंगे ना तो बुराइयां इसी तरह से फैलेंगी और कल को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने जवाब देना पड़ेगा हमें कि हमने बुराई देख के अपनी आंखें वो कबूतर की तरह हम बंद नहीं कर लेते कि नहीं जी वो तो वहां हो रहा है, हमारे घर की खैर है। तो जब घर में आ जाती है ना चीज, तो फिर चीखें भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसी निकलवाते हैं कि फिर समझ नहीं आती है बंदे को। तो आइए जनाब हम आते हैं अपने सबक की तरफ। हम करें सूरत यूसुफ, सूरह यूसुफ की आयत नंबर 77 इंशाअल्लाह। बड़े प्यारे सबक हैं। आज की क्लास में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करती हूँ कि हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसके मानी की समझ अता करे, इसके इजाबात हमें समझा दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम पे खोल दे इन मानी की, वो कहते हैं ना कि डेप्थ खोल दे। आमीन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब हम पढ़े थे सूरह यूसुफ में कि पहले अब ये वो दौर शुरू हो गया जब कहत का दौर था। कनान तक भी ये कहत आ गया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास भेजा। वहां से वो जब गए थे सामान लेने तो उन्होंने कहा कि हमारा बाप बूढ़ा है और हमारा एक भाई भी है, आप उसके भी हिस्से का सामान दे दें। उन्होंने कहा कि नहीं, जो हमारा यही तरीका है कि जो आता है, जितने उसके पास ऊंट होते हैं, एक ऊंट के वजन के बराबर एक बंदे को गला दिया जाता है। तो नेक्स्ट टाइम जब तुम आओगे तो तुम अपने भाई को भी साथ लेके आना। नेक्स्ट टाइम यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो भाई थे कनान, वो अपने जो उनके 10 भाई थे, बाकी जो दूसरी माँ में से थे ना, वो उनके साथ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम उनको कहते कि ठीक है तुम जाओ, उनसे इजाजत लेके वो अपने छोटे भाई को भी लेके आते हैं। अब जैसे ही वो लेके आते हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने छोटे भाई को बता देते हैं कि ये वो यूसुफ हैं और वो उनका भाई है। और फिर उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है वो उसको जब अपने पास रखना चाहते हैं, क्योंकि उस मुल्क का कानून, मिस्र का कानून ये था कि उनके मुताबिक वो ऐसे उसको रख नहीं सकते थे, क्योंकि ये तो आए थे कनान से, आए थे किसी दूसरी जगह से आए थे ना। तो अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें क्या बताया कि कज़ालिका किदना ली यूसुफ, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तदबीर की यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए। ये सारा प्लान जो है ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किया और उनको किस तरह से उन्हीं से पूछा कि तुम्हारे फिर मुल्क का क्या कानून है, कि अगर कोई चोर होता है तो तुम क्या करते हो। तो जब उन्होंने बताया कि हमारे मुल्क का कानून ये है कि जो चोर होता है वो उसी का गुलाम बन जाता है, वो उनके पास ही चला जाता है। तो यही चीज लेके अब आगे हम देखते हैं कि अब क्या हुआ था कि वो फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम उसको छोटे जो है अपने भाई बिन्यामीन को वो कैसे अपने पास रख लेते हैं। अब आयत नंबर 77 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, कौलू, कहा किसने, उन तमाम भाइयों ने, इन यसरिक, कि अगर इसने चोरी की है, फकद सरका अखुल लहू मिन कब्ल, के इससे पहले इसके भाई ने भी चोरी की थी। अब देखें कह किसको रहे, उनको क्या पता था कि जिसको कह रहे हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम वही हैं। तो अब यहाँ से हमें क्या सबक मिलता है, हमें ये सबक मिलता है, देखें
कि द मोमेंट उनको पता चलता है कि उसके सामान में से वो प्याला निकला है, तो उन्होंने फौरन ही जैसे हो गया ना कि हमारा कोई इसके साथ ताल्लुक ही नहीं है, कि ये तो चोर है, तो इसके भाई ने भी ऐसे चोरी की थी, हम ऐसे नहीं हैं। तो इससे हमें ये सबक मिलता है कि मुश्किल के वक्त अपने भी साथ छोड़ देते हैं। अब होता यही बात है जो मैं आपको पहले बता रही हूँ ना, कि खानदान में ये ऐसा क्यों होता है, सगे बहन भाइयों में आप देखिए, हमारे घरों में भी ऐसे हमने कई दफा सुना है ना। सबसे बड़ी बात तो जब माँ बाप की डेथ होती है, तो जब विरसे तकसीम होता है, वहीं पे 99% तो वहीं पे प्रॉब्लम आ जाती है कि बहन भाइयों में आपस में दुश्मनियां हो जाती हैं। और कई दफा तो यहाँ तक भी सुनते हैं कि मैं अगर मर भी गया तो मेरी कब्र पे इसको नहीं आना, और मेरे जनाजे पे इसको ना लाना, या मेरा मुंह ना दिखाना। ये कौन लोग होते हैं? ये हमारे लव वंस ही होते हैं। देखिए, गैरों को तो कोई पता भी नहीं होता क्या होता है, वो तो सिर्फ बातें गॉसिप्स करने में लगे होते हैं। ये दुश्मनियां, ये हसद, ये सारी चीजें अराउंड होती हैं। हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि वी हैव टू बी केयरफुल, वी हैव टू बी केयरफुल। हमें इतना ट्रस्ट, एक होता है ना अंधा ट्रस्ट होना, कि वो नहीं करना चाहिए। कि किस तरह से, अगर देखें, एक बात आप याद रख लें, अगर किसी को भी आजमाना है ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हदीस में भी बताया था ना कि मोमिन एक बिल से 2 दफा नहीं ढसा जाता। वो तो हमें समझ आ गई इस बात की कि अगर एक दफा किसी ने तुम्हारे साथ धोखा किया है, तो फिर उसके बाद उस पर वो ट्रस्ट ना वो लेवल का करना। ताल्लुकात खत्म करने के लिए नहीं कहा, ताल्लुक जरूर रखना है, ताकि वो उसकी, आप अगर ताल्लुक खत्म होगा तो उसकी करेक्शन कैसे करेंगे, राइट? तो करेक्शन करने के लिए उसके साथ ताल्लुक अच्छा करना जरूरी है, ताकि वो उस बुराई को छोड़ दे किसी तरह से, लेकिन दोबारा से उस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अब देखिए कि किसी भी इंसान को अगर आपने आजमाना है ना, तो उसको आप गम में आजमा के देखें। खुशियों में सारे ही साथ दे देते हैं, हर कोई। अब देखिए, दूर पार का रिश्तेदार होता है ना, कोई एक खानदान में किसी का कोई नाम हो जाता है, कोई अमीर हो जाता है, कोई सियासत में आ गया, या बहुत बड़ा कारोबार हो गया, या कोई भी लेवल पे, तो दूर के भी रिश्तेदार पता है क्या कहेंगे, वो मेरी अम्मी की फुफ्फी के बेटे का, चाचे का पोते का पोता, मेरे जानने वाले हैं। वो मतलब उनको पता भी नहीं होगा कि ये कौन है, तो कैसे रिलेशन बनाते हैं। लेकिन अगर हालात खराब होते हैं ना, तो फिर अपने घर के फंक्शन में भी बुलाना वो नहीं समझते इम्पोर्टेंट। वहां पे आके देखें, गम में कोई साथ दे या ना दे, कहते खुशियों में तो हर कोई साथ दे देता है, गम में आके इंसान किसी का साथ दे, ये बड़ी बात होती है। और आके ये सारी चीजें देखें हमारी जिंदगी में हम आए दिन देखते हैं। अपने घरों में नहीं देखेंगे तो अपने फ्रेंड्स के घरों में देख लेंगे, अपने जानने वालों में से देख लेंगे। तो इससे हमें सबक लेना चाहिए। यहाँ पे हमें जो बहुत बड़ा सबक मिल रहा है वो यही है कि अपने भी किस तरह से धोखा दे देते हैं। और फिर क्या कह रहे हैं, फ़अस्सरहा, और फिर छुपा लिया इस बात को, यूसुफ ने फी नफ्से ही, अपने जी में, वलम युबदिहा लहुम, और नहीं जाहिर किया उन्हें ये जाहिर नहीं किया। अब यहाँ पे आप यूसुफ अलैहिस्सलाम किया सब्र देखें। अब जरा अपने आप को खड़ा करके देखें इस जगह पे कि एक बड़ा मुकाम हो, इतनी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इज्जत दी है, इतना माल भी है, सब कुछ के, और दूसरी तरफ जो भाई हैं वो इस हाल में आए हैं कि बिल्कुल जैसे मांग रहे हैं आके कि किसी तरह से हम सर्वाइवल में है, कि मतलब किसी तरह से हमें गंदम यहाँ से मिल जाए। और वहां पे यूसुफ अलैहिस्सलाम उनको याद करा सकते थे बड़े अच्छे से, ताने दे दे कि तुम्हें याद है तुमने मेरे साथ ये किया था, मैं तुम्हारा वही भाई हूँ, आज मुंह उठा के आ गए हो, चलो जाओ यहाँ से, मैं नहीं तुम्हारी हेल्प करता, या कुछ भी नहीं। अभी भी बताएंगे यूसुफ अलैहिस्सलाम। लेकिन आप यहाँ पे उनका किरदार देखें कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने छुपा लिया अपने दिल में ये बात, और उनको कुछ भी नहीं कहा। क़ाला अंतुम शर्रुम मकाना, और कहा कि तुम बड़े ही बुरे मुकाम पे हो। उनको नहीं कहा, अपने जी में कहा, अपने दिल में कहा कि अभी भी ये ऐसे ही हैं, अभी भी अखलाक की इस लेवल पे है ये। और फिर खुद ही से अपने दिल में कहते हैं वल्लाहु आलमु बिमा तासिफून, क्योंकि तकलीफ तो होती है ना जब बंदा मुंह के ऊपर ऐसी बात कर रहा होता है। तो फिर कहते हैं कि अल्लाह खूब जानता है जो ये बयान करते हैं कि मैंने ऐसे नहीं किया। तो ये जो मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि इसके भाई ने भी ऐसे किया था, तो अल्लाह जानता है। अच्छा, बाज़ मुफस्सिरीन ने यहाँ पे कहा कि जो इनके भाइयों ने ये कहा ना कि इसके भाई भी चोरी उसने भी की है, हालांकि उनको पता था कि वो गलत बात कह रहे हैं। तो कहते जब यूसुफ अलैहिस्सलाम छोटे थे, इनकी मदर की जब डेथ हुई है, तो ये और इनके छोटे भाई, उनको इनकी फूफी जो थी ना उन्होंने पाला, क्योंकि घर में औरत नहीं थी उस वक्त। तो फूफी को इनसे बड़ी मोहब्बत थी। जब ये थोड़े बड़े हुए तो याकूब अलैहिस्सलाम ने जब उनको अपनी बहन से कहा कि अब मुझे ये वापस दे दो,
तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी इसको मेरे पास ही रहने दो, मुझे मतलब मैंने शुरू से इसको पाला है, मुझे बड़ी मोहब्बत है। लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, मुझे ये वापस चाहिए। तो कहते हैं कि उस वक्त, क्योंकि उनके मुल्क का कानून यही था कि जो चोर है ना उसको उसी के पास रखना, ये हम देख चुके ना। तो कहते हैं कि उनकी फूफी ने उनके सामान में एक बेल्ट, जैसे वो कहते हैं कि वो चली आ रही थी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने से, वो फिर इस तरह से याकूब अलैहिस्सलाम को मिली थी और याकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दी थी। और वहाँ से वो बेल्ट जो थी वो फिर नहीं, यूसुफ अलैहिस्सलाम को नहीं दी थी, वो उनकी फूफी के पास थी। तो वो बेल्ट जो है ना वो उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामान में रख दी और फिर कहा कि मुझे तो वो बेल्ट नहीं मिल रही है। तो फिर जब सामान खोला था उस वक्त भी ये हुआ था। अब ये देखें कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी कितनी मुश्किलों में, शुरू से लेके अब तक। अब देखें कि एक के बाद गम, एक के बाद एक गम। अब जैसे मैं आपको ये कहती हूँ ना कि ऐसा नहीं होता कि अगर हमारी जिंदगी में कुरान खुल गया या हम तस्बीहात करना शुरू हो गए, हम तहज्जुद में उठना शुरू हो गए, तो हमारी जिंदगी में मुश्किलें नहीं आएंगी। देखिए मुश्किलें आती हैं, नबी हैं, बाप भी नबी है, बेटा भी नबी है, दादा भी नबी है ना, हमने पढ़ा, पर दादा भी नबी है। फिर भी कब से मुश्किलें आ रही हैं, आजमाइशें चल रही हैं। कुरान हमें क्या सिखाता है कि हमने इनको डील कैसे करना है। अल्लाह सुब्हाना ताला हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला को पता है कि मेरे बंदे पे जब मुश्किल आएगी ये बिखर जाएगा, इमोशनली ड्रेन हो जाएगा। तो किस तरह से उस वक्त अल्लाह सुब्हाना ताला सब्र जो देता है बंदे को, उसके साथ साथ अल्लाह सुब्हाना ताला कैसे उसको बताते हैं कि तुमने कायम कैसे रहना है, तुम्हारे इमोशनली तुमने कैसे ठीक रहना है ताकि तुम्हारी जिंदगी आगे चल सके। अगर एक माँ है तो उसको इस लेवल पे लेके आते हैं अल्लाह सुब्हाना ताला कि तुम ये देखो कि अगर तुम बिखर गई तो तुम्हारे बच्चे जो हैं जिनके पर कोई मुश्किल आई है वो बिखर जाएंगे, तो फिर सारा मामला खराब हो जाएगा। तो हर एक उनकी जगह पे कायम रखना, यही कुरान हमें सिखाता है। कुरान हमें हर जगह पे अल्लाह सुब्हाना ताला पे तवक्कल सिखाता है कि वो ज़ात है ना जिसने ठीक करना है। जब तुम उस पर तवक्कल करोगे, जब तुम्हें ये पता होगा कि मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरा रब मुझे सुन रहा है, मुझे कोई भी ना सुने मेरा रब मुझे सुन रहा है, तो फिर उसी के आगे तुम हाजत बयान करते हो। फिर वही अलका करेगा दिल में, वही तसल्लियां देगा कि तुम्हें कोई बात नहीं, इन्ना माल उसरी युसरा, कि आसानी आएगी। तंगी के बाद ऐसा हो नहीं सकता कि आसानी ना आए, गुजर जाएगा ये वक्त भी और फिर आसानी का वक्त भी आ जाएगा। फिर अल्लाह सुब्हाना ताला हमें यही बताते हैं कि जब आसानी का वक्त आएगा तो अल्लाह की याद ना छोड़ना, क्योंकि जो आसानियों में अल्लाह को याद करते हैं, मुश्किल में अल्लाह सुब्हाना ताला उनको अकेला नहीं छोड़ते। ये चीजें बस हमें समझ आ जाए ना तो इंसान हर गम आसानी से गुजार देता है। कि दुनिया की जिंदगी है कितनी, कुछ दिन की जिंदगी के पीछे इतना रोना पिटना डाल दें। हमने तो जाना है जहां पे हमेशा की जिंदगी, वहां पे इतनी अजर लेके जा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, ये मेरे रब का अगर इसमें मर्जी है तो मेरे अल्लाह जी मैं इसमें खुश हूँ, अल्लाह जी मुझे इसमें से आसानी से निकाल देना। मैं इमोशनली टूट गई हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रही इस वक्त कि मेरे साथ क्या हुआ। गम पे गम पड़ रहे होते हैं। आप याकूब अलैहिस्सलाम को देखें जरा, आगे इनका पूरा जो किस्सा आएगा। लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला से गम के बावजूद भी ऐसा नहीं होता कि गम में तो आपको कोई गम भी नहीं लग रहा। फिर तो वो कहते हैं ना, वो पाकिस्तान में बस के पीछे लिखा होता है कि अक्ल नहीं थे मौजा ही मौजा, अक्ल नहीं थे सोचा ही सोचा। फिर तो वो हाल हो जाएगा कि अक्ल नहीं थे मौजा ही मौजा, गम परेशानियां घर के आ रही, कोई बात नहीं जी मैं बड़ी खुश हूँ। ऐसा नहीं होता। लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला हमें डील करने का तरीका सिखा देते हैं। एक सहारा मिल जाता है, एक मजबूत सहारा कि जिसपे हमें ये यकीन होता है कि वही बस बदलने वाला और कोई बदलने वाला नहीं है। और इंशाल्लाह वो मेरी बात सुना, आज नहीं तो कल ठीक हो जाना है। अब यहाँ पे क्या था कि हमने क्या पढ़ा था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने दिल में छुपा ली उस बात को और कहा कि अल्लाह बेहतर जानता है कि जो तुम बयान कर रहे हो कि मैंने ऐसा नहीं किया। अब आयत नंबर 78 में अल्लाह सुब्हाना ताला हमें क्या बता रहे हैं। कौलू कहा, भाइयों ने कहा, या अय्युहल अजीज, ए अजीज, इन्ना बेशक लहू इसका अबन बाप शेखुन कबीरा, कि बूढ़ा है, बड़ी उम्र का है। अच्छा, शेखुन कबीरा में बाज मुफस्सिरीन ने कहा कि बड़ी उम्र का, और बाज ने ये कहा कि बहुत जैसे पाइस्ट है, बड़ा नेक है, क्योंकि वो नबी भी थे। तो इन्होंने ये कहा कि इसका बाप जो है ये बड़ी उम्र का है या नेक है। फखुज अहदना, तो रख ले हम में से किसी एक को, मकाना हो, इसकी जगह पे।
اب کیا ہوا، پہلے تو انہوں نے کہا کہ جی اس نے کیا چوری، اس کا بھائی بھی ایسے ہی تھا، یہ ایسے ہی ہے، رائٹ. پھر ان کو یہ لگا کہ یہ تو ہم نے اپنے باپ سے وعدہ کر کے آئے تھے، اس کو کیسے یہاں پہ چھوڑ جائیں گے، ہم کیسے واپس جائیں گے. وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک سیکنڈ تھاٹ ایک دم سے آنی شروع ہو جاتی ہے. اور پھر اس کو کہا کہ اس کو چھوڑ دیں، اس کی جگہ پہ ہم میں سے کسی اور کو رکھ لیں، کیونکہ ہم نے تو اپنے باپ سے وعدہ کر کے آئے تھے. اب یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، کہ اللہ کی پناہ، ان ناخذا، کہ ہم پکڑے، الا مگر، ما وجدنا، کہ جس کے پاس پایا ہم نے، متاعنا، اپنا سامان، عندہ، پاس اس کے. کہ اب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ کی پناہ کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ جس کے پاس ہم نے سامان پایا ہے، مطلب جو چور ہے بیسیکلی، اس کی جگہ پہ ہم دوسرے کو رکھ لیں، تو ہم ایسا نہیں کر سکتے. انا، بے شک ہم، اذا لظالمین، تب تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے. فلم مستیئسو، پس جب وہ مایوس ہو گئے، منہ، اس سے، کون، ان کے یوسف علیہ. اچھا اب یہاں پہ نا، اب یہ پورے قصے میں اگر آپ شروع میں نا وہ نام لکھتے، قالو جہاں پہ آتا ہے کہ بھائیوں نے کہا، کہ یوسف علیہ السلام نے کہا، کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تو وہ ساری چیزوں میں نا آپ کو یہ سٹوری بہت آسانی سے سمجھ آئے گی، کیونکہ بار بار وہ ہوتا ہے اس نے کہا، تو آپ اوپر چھوٹا سا لکھ لیا کریں. اب یہاں پہ کیا تھا کہ یوسف کو جب انہوں نے منانے کے لیے پورا ہتھیار یوز کر لیے کہ شاید کسی طرح سے وہ مان جائیں. اب یوسف علیہ السلام نے جب منع کر دیا تو خلصو نجیہ، تو وہ انہوں نے کیا کیا، خالصو، وہ الگ ہو گئے اور سرگوشی کرنے لگے، کہ سائڈ پہ ہو کے سارے بھائی آپس میں پلان کرنے لگے کہ اب کیا کریں، ہم کیسے اپنے بھائی کو واپس لے کے جائیں. قالا، کہا، کبیرہم، ان کے بڑے نے، جو بڑا بھائی تھا نا. اب یہ وہی بڑا بھائی ہے جس نے یوسف علیہ السلام کو جب یہ لے کے جا رہے تھے تو انہوں نے پلان کیا تھا کہ اس کو قتل کر دیں. تو اس نے اس وقت یاد ہے آپ کو، ہم نے پڑھا تھا کہ بڑے بھائی نے کہا کہ نہیں اس کو قتل نہیں کرنا، یوں کرتے ہیں کہ اس کو ہم کنویں میں پھینک دیتے ہیں، تو پھر اس کو کوئی بھی لے جائے گا، یہ قافلہ لے جائے گا، یہ ہمارے پاس سے چلا جائے گا. یہ وہی بھائی ہے، اس کا ڈفرینٹ نام آتا ہے، لیکن اکثر تفاسیر میں یہودا ان کا نام آتا ہے. کہتے ہیں کہ اسی پہ پھر جو ریلیجن بنا تھا اور انہوں نے اپنا نام یہودی رکھا تھا، وہ اسی بڑے بھائی کے آگے نسل میں سے چلا تھا. تو جو بڑے بھائی ہے نا، اس نے یہ کہا، الم تعلموا انا، کہ نہیں کیا تم جانتے کہ بے شک اباکم، کہ تمہارے باپ نے، قد اخذ علیکم موثقا، تم سے لیا تھا پکا عہد، من اللہ، اللہ کے نام سے. اب وہ کیونکہ پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا تمہیں یاد ہے کہ تمہارے باپ نے پکا عہد لیا تھا کہ اس کو تم نے لے کے آنا ہے. وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُف، اس سے پہلے تو تم یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسے کر چکے ہو، کہ مطلب تم اس کو پکا عہد کیا تھا اور پھر تم نے جو کچھ کیا تھا تمہیں یاد ہے اس بات کو. فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ، اور اب وہ بڑا بھائی یہ کہتا ہے کہ میں تو ہرگز نہیں یہاں سے جانے والا ہوں، حتیٰ یأذن لی، یہاں تک کہ اجازت دے مجھے ابھی میرا باپ، او یحکم اللہ، یا پھر اللہ کوئی فیصلہ کر دے، لی، میرے لیے، وہو خیر الحاکمین، اور اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. اب بڑے بھائی نے تو یہ صاف کہہ دیا کہ میں تو یہاں سے نہیں جانے والا ہوں، تو میں تو جب تک میرا باپ نے یہ نہیں کہا کہ اس نے یہ مان لیا کہ ٹھیک ہے ہماری کوئی غلطی نہیں ہے، اور یا پھر اللہ ہی میرے فیصلہ کر دے، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے ختم کر دے کچھ بھی، میں نے یہاں سے نہیں جانا. اور اب اپنے دوسرے بھائیوں کو جو رہ گئے تھے ان کو کہتے ہیں ارجعوا الی ابیکم، کہ تم لوٹ جاؤ طرف اپنے باپ کے. فقولوا، تو پھر کہو، یا ابانا، اے ابا جان، ان ابنکا سرقا، کہ تیرے بیٹے نے، آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے. دیکھیں اب پورا تعلق ہی ختم کر دیا، یعنی کہ بھائی نے چوری کیا، آپ کے بیٹے نے چوری کیا، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. وما شہدنا، اور نہیں ہم گواہی دے سکتے، الا مگر بما علمنا، مگر وہ جو ہمارے علم میں آیا ہے. مطلب ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اس کے بارے میں، جا کے تم اب باپ کو یہ کہنا کہ ہم نے تو جو دیکھا ہے ہم وہی گواہی دے رہے ہیں، اس کے علاوہ ہم کوئی بات نہیں کر رہے. اب یہاں پہ دیکھیے یہ جو شاہد نہ، کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھ سے تو نہیں دیکھا تھا کہ اس نے بھائی نے اس کے اندر اپنا وہ جو پیالہ تھا جو بادشاہ کا چوری ہوا تھا وہ ڈالا ہے. اب ہوا کیا تھا کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ سب کی تلاشی لی تو اس میں سے نکلا، تو ایسی گواہی کو کیا کہتے ہیں، یہ واقعاتی گواہی ہوتی ہے. اور اگر ایک دیکھیں، ایک آئینی شہادت ہے اور ایک واقعاتی ہے. ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ جب عزیز مصر کی بیوی تھی، وہ جب یوسف علیہ السلام کو بہکانے کے لیے اس نے کمرے میں بند کر دیا تھا، جب وہ باہر نکلے تو عزیز مصر باہر کھڑا ہوا تھا، تو گھر کے اندر ایک آدمی تھا جس نے کہا تھا کہ قمیض اگر آگے سے پھٹی ہے تو پھر وہ عورت قصوروار ہے،
वो वाली हमने पढ़ी थी ना, वो सारा किस्सा पढ़ा था। तो वो फिर जो अजीज मिस्र था उसने अपनी बीवी को कहा था कि तुम गलती पे हो। तो वही बात वो मतलब उसने आंख से नहीं देखा था, लेकिन इसी चीज को जो वाकयाती शहादत है ना, इसी बात को कहते हैं। इसी के बारे में एक हदीस में भी आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने में एक दो औरतें थी, दोनों के पास छोटे मतलब जैसे होता है ना न्यूबॉर्न बच्चे, उस तरह से थे। तो वो कहीं जा रही थी रास्ते में, तो उस जमाने में होता था ना कि जंगलों में से गुजरना पड़ता था या इस तरह से। तो कहते हैं कि वो दोनों बच्चे उन्होंने रखे हुए थे, तो एक भेड़िया आया तो वो एक बच्चे को उठा के ले गया, मतलब उसने उसको खा लिया या ले गया उठा के। अब दोनों औरतों की लड़ाई होना शुरू हो गई। उन्होंने दोनों ने ये कहा कि नहीं, जो बच्चा बचा है ना, ये मेरा बच्चा है। अब ये बात लेके वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास गई। जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने देखा कि जो एक औरत है, जो बड़ी वाली औरत थी, वो रो रही है और वो कह रही है कि मेरा बच्चा था, दूसरी भी कह रही है, लेकिन उन्होंने फैसला बड़ी के हक में दे दिया कि ये बच्चा जो है ये इसका बच्चा है। अब वो फैसला जब हजरत कौन थे उनके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जब ये वाकया, वो गई उनके पास कि इस तरह से है कि ये वो, क्योंकि उनको ये मान नहीं रही थी, वो जो जिसका मतलब बच्चा था उनको उसको सब्र नहीं आ रहा था। वो उनके पास गए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि ठीक है, पूरा किस्सा सुना। तो उन्होंने अपने गुलाम को कहा कि एक चाकू लेके आओ। वो जब चाकू लेके आया तो उसने कहा कि इस बच्चे के दो हिस्से कर दो, एक हिस्सा एक को दे दो, एक हिस्सा एक को दे दो। कहते द मोमेंट ये बात सुनी ना, तो वो औरत जिसका वो बच्चा था वो एकदम से चीखना शुरू हो गई कि नहीं 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 नहीं, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, आप ये बच्चा इसको दे दे, आप ये बच्चा इसको दे दे, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सॉरी कौन से सलेमान अलैहिस्सलाम ने वो बच्चा जो है वो उस औरत को, जो दूसरी वाली औरत थी, उन्होंने कहा कि ये बच्चा इसका है, क्योंकि जो तड़प के साथ वो रोई है ये एक माँ ही ऐसे कर सकती है। और ये कौन सी गवाही थी? ये आईनी नहीं थी, ये शहादत, इसको कहते हैं कि वाकयाती शहादत जो होता है ना, उस तरह से था। एक और बल्कि हदीस में था, मैं आपको चलिए मैं बाद में, आपको फिर लंबा हो जाएगा, क्योंकि आज मैं सोच रही थी कि हम काफ़ी आयात इंशाल्लाह कवर करेंगे। अच्छा जी, अब अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या फरमाते हैं कि उन भाइयों ने ये कहा, बड़े भाई ने कहा कि अच्छा तुम जाओ और बाप को ऐसे कहना और उनको कहना वमा कुन्ना लिल गायबी हाफिजीन, और नहीं थे हम गायब पे कोई हाफिज नहीं थे, मतलब हमें गायब का इल्म नहीं था। इसकी दो तरह से तफसीर आती हैं कि अगर नंबर वन ये कि उन्होंने कहा कि अगर हमें क्या पता था, हम गायब को नहीं जानते, अगर हमें पता होता कि ये चोर है तो हम कभी इसको साथ ना लेके जाते, ना ही हम आपके साथ कस्में खाते कि हम इसको वापस लेके जाएंगे, तो हम तो नहीं जानते। दूसरा इसके बारे में तफसीर में क्या आता है कि जब इन्होंने अपने बाप को ये सारा किस्सा बताया तो बाप ने कहा कि उनको क्या पता था कि तुम्हारे मुल्क का ये कानून है कि उसकी जगह पे जो चोर है उसकी जगह पे वही बंदे को रख लेते हैं। इसका मतलब है कि तुम लोगों ने पहले प्लान किया है और तुम लोग इस तरह से कर रहे हो। तो उस पे उन्होंने कहा कि नहीं, हमें नहीं पता था, हम गायब नहीं जानते। ये बात हमने जब काफले वाले आए थे बात करने के तुम चोर हो, तो हमने उस वक्त कही थी, हमें क्या पता था कि इसके सामान से ये चीज जो प्याला है वो निकल आएगा। अब आयत नंबर 82 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ये भाइयों के साथ जब ऐसे बात हो रही है तो वो अब याकूब अलैहिस्सलाम को यकीन नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब वो उनको यकीन दिलाने के लिए कह रहे हैं वसलिल करियता, तो आप पूछ ले इस बस्ती वालों से अल्लती कुन्ना फीहा, के जिसमें हम थे, जहां पे ये वाकया हुआ था, उस बस्ती वालों से पूछ ले क्योंकि वो भी उधर थे। वल ईरल्लती अकबलना फीहा, या फिर इस काफिले से पूछ ले जिसके साथ हम आए हैं, उनके सामने ही भी यही वाकया हुआ था। व इन्ना लसादिकून, कि हम तो सच्चे हैं। क़ाला, कहा, याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा। अब देखिए ये किस्सा अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें जो बार बार हम पढ़ रहे हैं, इतने सबक हैं इसमें, हम बार बार एक ही बात पढ़ेंगे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को कि वो किस तरह से मुहसिनीन का दर्जे पे थे और क्यों थे वो, और उनमें क्या ऐसी खूबियां थी जो अल्लाह सुब्हानहू तआला को इतनी पसंद थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको इतने अजर फिर अता किए थे। यही वो कहते हैं ना कि कुरान में आप वो चाबियां जैसे होती है ना कि आप दरवाजे खोलते हैं, आपको समझ आनी शुरू होती है। यही वो चीजें हैं जो हमें समझ आती हैं तो हमारी जिंदगियों में आसानियां हो जाती हैं। अब याकूब अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? क़ाला, कहा, बल सव्वलत लकुम अनफुसकुम अमरा,
کہ بلکہ اچھا کر دکھایا تمہارے لیے تمہارے نفس نے یہ امر، کیونکہ ان کو یقین نہیں آ رہا تھا. تو اس میں ہمارے لیے کیا سبق ملتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام ان کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے نفس نے یہ برائی جو تم نے کی ہے، یا تم نے اس کو چھوڑ آئے ہو، یا کہاں پہ تم نے کیا کیا ہے، تمہارے نفس نے تمہیں اچھا کر کے دکھا دیا اس کو، اور تم نے یہ کر لیا. اب یہاں پہ دیکھیں وہ یہ نہیں کہہ رہے. اب ہم نے کیا سیکھنا ہے؟ کبھی بچوں سے غلطی ہوتی ہے نا، تو ہم ایک دم ہوتا ہے نا کہ میری تو عادت ہے میں تو سیدھی بات کرتی ہوں کہ اگلے کی بے شک سر سے پاؤں تک آگ لگ جائے، اور ہم بڑے آرام سے کہتے ہیں مجھے تو عادت ہے میں تو سیدھی سیدھی بات کرتی ہوں، میں کون سی جھوٹ کہہ رہی ہوں. اب یہاں پہ دیکھیں یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہارے نفسوں نے اس کو اچھا کر کے دکھایا، اس لیے تم نے یہ برائی کی، ورنہ تم یہ نہ کرتے. تو ہمیں اس سے سبق ملتا ہے کہ وہی جو میں نے آپ کو پہلے حدیث سنائی تھی شروع میں، کہ ہمارے نفس شیطان کیسے خوبصورت کر کے ہمیں چیزیں دکھاتا ہے کہ ہم اس میں ملوث ہو جاتے ہیں، اور یہی چیز ہمیں قرآن سکھاتا ہے کہ اس کی باتوں میں نہیں آنا. رائٹ. تو یہاں پہ اب دیکھیے کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہمیں فرما رہے ہیں کہ پھر یعقوب علیہ السلام نے سب سے پہلے تو اپنے بچوں کو یہ کہا کہ تمہارے نفس نے تمہیں خوبصورت کر کے وہ چیز دکھا دی ہے جو گناہ تم کر کے آئے ہو، فصبر جمیل، تو اب صبر ہی اچھا ہے. اب دیکھیے صبر کے بارے میں یعقوب علیہ السلام کا صبر آپ دیکھیں، یوسف علیہ السلام. اب دیکھیے کوئی بچہ اللہ نہ کرے کوئی فوت ہو جائے نا تو صبر آ جاتا ہے، گم ہو جائے نا تو صبر نہیں آتا. بڑا مشکل ہے یہ. میں نے ایک دیکھی تھی ہمارے ڈسکا میں ایک عورت تھی، ان کا بچہ گم ہو گیا تھا. وہ بزنس کے لیے کہیں گیا تھا، کوئی سامان لے کے نہیں جیسے جاتے ہیں، وہ بچہ واپس ہی نہیں آیا. وہ عورت کو میں نے مرتے دم تک دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں وہ انتظار نہیں ہوتا، جیسے وہ ہمیشہ ہی کوشش کرتی رہی کہ شاید مطلب وہاں سے پتہ کروں وہاں سے پتہ کروں. کتنے سالوں وہ فوت ہو گئی، وہ بچہ نہیں واپس آیا. اب وہ پھر اپنے آپ کو تسلیاں بھی دیتی تھی کہ بیچ میں وہ سیلاب آیا تھا فلاں ایریا میں، ہو سکتا ہے کہ وہ اس وقت اس ایریا سے گزرا ہو تو اس طرح سے ہو گیا. مطلب وہ جب بھی بات کرتی تھی وہ روتی بھی تھی، اور عجیب ان کی حالت تھی کہ صبر ہی نہیں آتا تھا. وہ کہتے ہیں نا کہ یہ بھی بڑا خوبصورت مقام ہو جاتا ہے جب کلوجر مل جاتا ہے بندے کو. جو بھی ایک واقعہ ہوتا ہے کہ پتہ چل جاتا ہے اچھا یہ ڈن ہے، مطلب اس کے بعد پھر روتا ہے، یاد آتی ہے، لیکن کلوجر مل جاتا ہے نا. لیکن جب گم ہو جائے نا یہ بڑی تو بس دفعہ، اللہ نہ کرے اللہ کسی کو ایسی آزمائش میں ڈالے. اب پتہ ہے جب وہ فوت ہو گئی نا تو اس کے بعد مجھے کسی سے میری بات ہو رہی تھی، کیونکہ ڈسکا میں تھی وہ، تو مجھے کسی نے بتایا کہ انہی کی ایک اور بیٹی اس کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا. وہ کہیں جاگ سے واپس آ رہی تھی اور راستے میں پتہ نہیں کہاں پہ گم ہو گئی، کیا ہوا وہ جو بھی پتہ نہیں. اٹ واز اے لانگ اسٹوری. لیکن میرا بتانے کا یہاں پہ مقصد ہے کہ دیکھیں ایسی ایسی آزمائشیں پڑتی ہیں لوگوں پہ کہ اس میں کیا قصور ہوتا ہے والی بات ہے نا، کہ کیا بس اللہ ہی ہے کہ جو ہم سب کو بچائے رکھے. میں کہتی ہوں کہ اولاد کی آزمائش جو ہے نا اللہ کسی کافر پہ بھی کسی پہ کوئی بھی بندے پہ نہ ڈالے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ اولاد اور پیسہ جو ہے نا یہ بڑی بری آزمائش ہے. کیونکہ پہلے تو دیکھیں ہم ایک انسان ہوتے ہیں نا، بیماری ہے پریشانی ہے ایک انسان کاٹ لیتا ہے، لیکن جب ایک عورت ماں بنتی ہے یا ایک آدمی باپ بنتا ہے، پھر اس کے ساتھ اور رشتے آتے ہیں. اگر میں عورت ہی کی بات کرتی ہوں، جیسے کہ خامند ہے، پھر اس کے بعد اولاد ہے. آپ سوچیں کہ اگر فار ایگزامپل 3 بھی بچے ہیں آپ کے، 4 بچے ہیں یا 2 بچے ہیں، اس کے ساتھ اپنا دکھ بھول جاتا ہے. اگر بچوں کو کہتے ہیں نا کانٹا بھی چبھتا ہے تو ماں تڑپ اٹھتی ہے. اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ہماری زندگی میں قرآن کھل گیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ.